एलआईसी और सारे राष्ट्रीय क्षेत्र को अगर ठीक से लड़ना है, अगर इनमें लड़ाई जारी 1 लाख से नहीं मिलेगा, आगे से नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके जो बोल रहा था जो मैनुअल में चल रहे थे लोग जो चलते उनके मैनुअल में लिखा है ही नहीं कि वो आपके लिए खड़े, उनके मैनुअल में लिखा है ही नहीं वो एलआईसी को बचाए, उनके मैनुअल में लिखा है वो मालिक को दे। तो इस तरह से वो लोग सरकार चला रहे, ये केंद्र में हो कि राज्य में। तो इनको जो है अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो नेता बन नहीं सकते, हम लोग इनको एक जवाब दे सकते हैं। और जवाब देने के आता है तो उनसे एक पूछो, क्या आप बैंक बेचना चाहते हो? क्या आप बैंक बेचने के खिलाफ हो? क्या आप एलआईसी बेचने के खिलाफ हो? क्या आप जाएगा और वही एलआईसी और बैंक को बचाएगा, इसके लिए आप सब हमारे साथ रहेंगे। इसी आशा से आप सबके साथ धन्यवाद देके मेरा बात खत्म करता हूँ। इनकलाब इनकलाब दुनिया के मजदूर। সিআইটিউর পক্ষ থেকে আজকে এই বানারহাটে একটা কনভেনশন ডাকা হয়েছে। এই কনভেনশন যে উদ্দেশ্যটা আপনাদেরকে বলতে চাই যে আগামী 15-16 তারিখে সারা দেশ জুড়ে ব্যাংকের ধর্মঘট, 17 তারিখে সারা দেশ জুড়ে সাধারণ বীমার ধর্মঘট এবং 18 তারিখে লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া এলআইসির ধর্মঘট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই ধর্মঘট কেন আমরা করতে যাচ্ছি এবং ধর্মঘট নিয়ে কনভেনশন কেন? আপনারা জানেন যে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, যেই রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র এই দেশের আর্থিক বুনিয়াদ, এই দেশের মানে জল থেকে মাটি অবধি সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিনিয়োগ থাকে। এবং যদি বলি আর্থিক ক্ষেত্রকে ধরে রাখে হচ্ছে এলআইসি ব্যাংকের মতো সংস্থা। এই এলআইসি ব্যাংকের মতো সংস্থা পার্লামেন্টে আইনের মধ্যে দিয়ে তৈরি হয়েছিল এবং মানুষের অর্থ যাতে মানুষের কাজে লাগে, সেইটা যাতে লুটপাট না হয়, সেই জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং বিমা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে বাজেট প্রপোজালের মাধ্যমে সরাসরি দুটো ব্যাংককে বিক্রি করতে চাচ্ছে, একটা জেনারেল ইন্স্যুরেন্সকে বিক্রি করতে চাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এলআইসির শেয়ার বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেই এলআইসি 5 কোটি টাকা থেকে শুরু করে আজকে 32 লক্ষ কোটি টাকা সম্পদ তৈরি করেছে এবং এই সম্পদের মালিক প্রকৃত অর্থে দেশের 130 কোটি মানুষ। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার যারা চালাচ্ছেন তাদের কোনো অধিকার নেই এই মানুষের দ্বারা তৈরি হওয়া এলআইসি ব্যাংক এর বিলগ্নীকরণ করা। এবং যেই এলআইসি এবং ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ধরোহর, আমাদের এই দেশের ভিত্তিভূমি বলা যায়, তাকে দুর্বল করার চক্রান্ত হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে সমস্ত কর্মচারী, দেশের শ্রমিক সংগঠন, সংযুক্ত কৃষক মোর্চা এবং সমস্ত দেশ জুড়ে আমরা আজকে বিভিন্ন জায়গায় কনভেনশন করছি এবং আপনাদের কাছ মাধ্যমে আমরা দেশের মানুষকে বলতে চাই যে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অগণতান্ত্রিকভাবে এলআইসি শেয়ার বিক্রি করার প্রচেষ্টা করছে, যেই এলআইসি সবসময় এই দেশকে আর্থিক ক্ষেত্র থেকে শক্তিশালী করেছে এবং দেশের মানুষের টাকা দেশের প্রয়োজনে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে। সেইটাই অক্ষুণ্ণ থাকুক, সেই লড়াইতে আমরা মানুষের সমর্থন চাইছি এবং আপনাদের মাধ্যমে আমরা এই ধর্মঘটে মানুষের সমর্থন চাইছি, যেটা আমরা আমাদের মায়না বাড়াবার জন্য করছি না, এলআইসি এবং ব্যাংককে রক্ষা করার জন্য করছি, দেশের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা রক্ষা করার জন্য করছি। আমি রজত রায়, সহ সম্পাদক, विभागीय बीमा कर्मचारी समिति जलपाईगुड़ी। आज जो हमारी सभा हो रही है उसमें 15 और 16 इस महीने के 15 और 16 तारीख को हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। ये हमारे वेतन वृद्धि के लिए नहीं है, कर्मचारी नियोग के लिए भी नहीं है, ये एक अलग किस्म के हड़ताल है। इसमें हमारे जो फिनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को जो बताई कि हम 2 बैंक को बेसरकारीकरण करने जा रहे हैं, इसी विषय में हम शंकित हैं और इसी विषय में हम लोग इस स्ट्राइक को कर रहे हैं। इसमें हमारे 9 संगठन हैं, सारे के सारे संगठन एक साथ हैं, ऑफिसर्स यूनियन हैं और हमारे जो कर्मचारी यूनियन है सारे एक साथ हैं। और हमारे इस स्ट्राइक के पीछे कारण ये है कि जो हमारी सामाजिक अवस्था है ये बिल्कुल बिगड़ जाएगी अगर सारे बैंक प्राइवेट हो गए, बेसरकारीकरण की गई,
तो इसमें देश की बहुत क्षति होगी, इसलिए हम लोग ये स्ट्राइक कर रहे हैं। इसलिए हम लोग जनगण से अनुरोध कर रहे हैं कि वे भी हमारे साथ आएँ और हमारे सहयोगिता करें। आपका परिचय? हेमलता बाघवार, पहले तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में थी, लेकिन अभी तो पंजाब नेशनल बैंक हो गया। और मैं संगठन बैंक फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट हूँ। आज हमारा जो CITU का बानाहाट ब्लॉक कमेटी के तत्वावधान में हम लोग ये कन्वेंशन बुलाए हैं। ये कन्वेंशन में हमारे जो बैंक कर्मचारी संगठन के लोग, LIC के कर्मचारी, एजेंट बंधु और हमारे बीच बैंक का अमानतकारी होल्डर और LIC का एजेंट, बीमा कर्मचारी का बीमा होल्डर, ये समस्तों को लेकर हम लोग ये कन्वेंशन बुलाए हैं। आप लोग का मालूम है कि केंद्रीय सरकार आज हमारे भारत का इतना बड़ा शिल्प जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा देती है और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर कर्मरत हैं और उनकी काम की मार्फत से उन लोग अपना जीवन जीविका गुजार रहे हैं। आज केंद्र सरकार जो नीति बीते फरवरी महीना में जो बजट में जो जिनिस लाए हैं, ये हम लोग केंद्र सरकार की जनविरोधी नीति के खिलाफ में हम लोग इनको धिक्कार जनाते हैं, प्रतिवाद करते हैं। इनका जो बैंक को बिक्री करने का, LIC को और विलग्नीकरण का जो प्रयास उन्होंने लिया है, इसके खिलाफ में हम लोग तमाम लोग, साधारण लोग इसके साथ में बैंक को बचाने के लिए, LIC को बचाने के लिए हम लोग उनके बैंक कर्मचारी को, संगठन को, अंदर में काम करने वाले होल्डर्स जितने हैं, सबको बचाने के लिए हम लोग इसको खिलाफ में हैं। आपका परिचय? और हम बताते हैं, हमारे ये जो केंद्र सरकार बोल रहा है कि ये बैंक, बीमा, LIC, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम जिनिस हमारा ये सरकार का करने को काम नहीं है, ये हम प्राइवेट सेक्टर को देंगे, सरकार ये काम नहीं करेंगी, ऐसी बात उन्होंने बोल रहा है। इसीलिए हम लोग इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका प्रतिवाद हम लोग जनाते हैं। और हमारी नाम है तिलोक छेत्री, हम CITU के बानाहाट ब्लॉक के कन्वेनर हैं। स्ट्राइक से 15, 16 तारीख, 17 तारीख और 18 तारीख का जो स्ट्राइक से अगर सरकार यदि इसको ऊपर में ध्यान नहीं दिया तो आगामी दिन हम सभी बड़े से बड़े आंदोलन में जाकर ये केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ में हम लोग एकताबद्ध होकर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि किसान लोग समर्थन कर चुके हैं, धर्मगढ़ कौन सा संगठन समर्थन कर? बैंक के सारे संगठन, LIC के सारे के। अभी हाल ही में आपको चुनाव होने वाला है विधानसभा का, उसमें आप लोग भी जिस पार्टी को समर्थन करते हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इस स्ट्राइक से क्या चुनाव को प्रभावित करने की तो बात नहीं? देखिए, सीधी सी बात है, जो लोग देश का बैंक और बीमा को बेचना चाहती है तो उन लोगों को वोट मत दीजिए, सीधी सी बात। जो लोग इस देश को बैंक और बीमा और अर्थनीतिक स्वनिर्भरता बना के रखना चाहते हैं उसी के साथ हम दीजिए। हम लोग को बस यही करना है।